गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 8th की हिंदी मीडियम की इंग्लिश की बुक और आज हम रीड करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 11 जो आपका चैप्टर का नाम है इसमें द बनियान डियर। बनियान मिस होता है बरगद और डियर मिस होता है हिरन। बरगद हिरन के बारे में है ये स्टोरी। ठीक है, एक हिरन रहता है जिसका नाम रहता है बरगद हिरन और ये स्टोरी में हम पढ़ेंगे हिरन के बारे में और इसमें आगे चल के और भी लोग इसमें शामिल हैं। आपको मिलेंगे, राजा भी हैं, उनके मंत्री हैं, उनके प्रजा की लोग भी हैं उसमें। और एक और हिरन इसमें है जो जिसका नाम आपको मिलेगा आगे चल के, जो है आपका ब्रांच हिरन। ठीक है, ब्रांच डियर। तो दो हिरणों की कहानी है इसमें, तो आप लोग को पढ़ने को मिलेगी इसमें और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आई होप कि आप इससे अच्छा सीखें जो इसमें बताया गया है। तो इसमें हिरन की स्टोरी है तो आप लोग को मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए हम इसे रीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। In a forest on the outskirts of Chennai, there lived a beautiful golden deer. He was called King Banyan Deer and was the leader of a herd of 500 deer. Not very far off in the same forest was King Branch Deer, who was also the leader amongst another 500 deer. He was also extremely beautiful with a coat of a shiny golden hue and sparkling eyes. Outside this beautiful forest in the real world, there reigned a king who loved to eat meat at every single meal. He was King Brahmadatta of Chennai. Not only was he fond of hunting, but he also enforced the same of his subjects. He forced them to leave their own business and join him regularly on his hunting spree each and every morning. After a while, the villagers got sick of this regular routine as they had much better things to do with their lives. Besides, their work and means of livelihood had also begun to suffer. They realized that they must find a solution together. They came up with a plan. They decided to grow plants, sow crops, and dig water holes in the royal park itself. Then they would drive a number of deer into the confines of the park and shut the gates. In this way, the king would hunt at leisure and would not require any further help from his obedient subjects. So at first they went preparing the royal park for the deer. Then they sent. Then they went into the forest armed with weapons and sticks in order to drive the deer into the royal park. They surrounded the territories of both the herds, those of King Banyan deer as well as King Branch deer, and drove them into the royal park with shouts of glee as they beat their sticks on the ground and waved them in the air. As soon as both the herds were in, the gates were shut and the deer entrapped. They then went to their king and told him that as they could not accompany him anymore on his hunts, they had successfully managed to entrap a number of deer in the royal park of his royal pleasure. The king was absolutely thrilled when he set eyes on the great number of deer in the royal park. तो यहाँ तक हम रीड करेंगे अपना हिंदी के साथ। तो पहले आप लोग अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो रीडिंग करने में। उसके बाद हम इसे हिंदी के साथ रीड करते हैं, ठीक है।
इन ए फॉरेस्ट, इन मतलब में, ए में से एक, फॉरेस्ट मतलब जंगल में। इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में, ऑन द आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट में होती है बाहरी सीमा पर, ठीक है। ऑफ चेन्नई मतलब चेन्नई की। इन ए फॉरेस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, चेन्नई की बाहरी सीमा पर, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में, देयर लिव्ड वहाँ रहते थे, ए ब्यूटीफुल गोल्डन डियर, देयर मिस वहाँ लिव में रहता था, ए मिस एक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, गोल्डन मिस सुनहरा, और डियर मिस होता है हिरन। देयर लिव्ड ए ब्यूटीफुल गोल्डन डियर, वहाँ एक सुंदर सुनहरा हिरन रहता था। ही वॉज कॉल्ड द किंग बनियान डियर, ही मिस उसे वाज कॉल्ड पुकारते थे, किंग मिस राजा, बनियान डियर बरगद हिरन। ही वॉज कॉल्ड किंग बनियान डियर, उसे राजा बरगद हिरन पुकारते थे, एंड वॉज द लीडर ऑफ ए हर्ड ऑफ 500 डियर। एंड मिस और वाज मिस था, द लीडर मिस नेता, ऑफ ए हर्ड, हर्ड मिस होता है समूह का, ऑफ 500 मतलब 500, 500 डियर मतलब हिरन, हिरन के मतलब 500 हिरन के एक समूह का नेता था। नॉट वेरी फार ऑफ, नॉट वेरी फार ऑफ, फार ऑफ मतलब होता है अधिक दूरी पर, नॉट वेरी फार ऑफ अधिक दूरी पर नहीं। इन द सेम फॉरेस्ट उसी जंगल में, वाज किंग ब्रांच डियर, वाज मिस था, किंग मिस राजा, ब्रांच मतलब शाखा, डियर मतलब हिरन, मतलब अधिक दूरी पर नहीं, उसी जंगल में राजा शाखा डियर रहते थे। Who was also the leader amongst another 500 deer. Who miss जो, was miss थे, also miss भी, leader miss नेता, amongst another मतलब दूसरे, 500 deer मतलब 500 हिरन के, जो 500 हिरन के दूसरे 500 हिरन के नेता थे। ही वॉज आल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ही मिस वह, वाज मिस थे, आल्सो मतलब भी, एक्सट्रीमली मतलब बहुत मतलब अधिक, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ही वॉज आल्सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वह भी बहुत अधिक सुंदर थे। विथ ए कोट ऑफ शाइनी गोल्डन ह्यू, विथ मतलब साथ में, एक कोट मतलब एक कोट, ऐसा लगता था कि एक कोट था पहने हुए, ए शाइनी, शाइनी मतलब चमकता हुआ, गोल्डन मतलब सुनहरा, ह्यू एंड स्पार्कलिंग आइज, और उनकी आंखें चमक रही थी। वह बहुत अधिक सुंदर थे, साथ में उनका एक सुनहरा चमकीला कोट था, और उनकी आंखें चमक रही थी मतलब चमकदार थी। आउटसाइड दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, इस सुंदर जंगल के बाहर, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, दिस मिस इस, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फॉरेस्ट मतलब जंगल के, इस सुंदर जंगल के बाहर, इन द रियल वर्ल्ड, रियल मतलब होता है वास्तविक, वर्ल्ड मिस होता है संसार में, इन द रियल वर्ल्ड वास्तविक संसार में, देयर रेंड ए किंग, वहाँ एक राजा राज करता था, रेंड करना मतलब राज करना, देयर रेंड ए किंग, वहाँ एक राजा राज करता था, हु लव टू ईट मीट एट एवरी सिंगल मील, हु मिस जिसे, लव्ड मिस पसंद था, टू ईट खाना, मीट मिस होता है आपका मांस, एट एवरी सिंगल मील प्रत्येक भोजन में, मेल मिस होता है भोजन जो आप मील, हु लव टू ईट मीट एट एवरी सिंगल मील, उसे प्रत्येक भोजन में मांस खाना पसंद था। ही वॉज किंग ब्रह्मदत्ता ऑफ चेन्नई, ही मिस वह, वाज मिस था, किंग मिस राजा, ब्रह्मदत्त ऑफ चेन्नई मतलब चेन्नई के, वह राजा ब्रह्मदत्त थे चेन्नई के। नॉट ओनली वाज ही फॉन्ड ऑफ हंटिंग, नॉट ओनली ना केवल, वाज थे, ही फॉन्ड मतलब वह शौकीन, ऑफ हंटिंग मतलब शिकार के, वह केवल शिकार के ही शौकीन नहीं थे, बट लेकिन ही आल्सो, वह आल्सो भी, फोर्स मतलब मजबूर करते थे, द सेम ऑन हिज सब्जेक्ट्स, बिल्कुल उसी तरह अपने प्रजा को भी, मतलब वही, नॉट ओनली वाज ही फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वह केवल अकेले ही शिकार के शौकीन नहीं थे, बट ही आल्सो इन्फोर्स द सेम ऑन ही सब्जेक्ट्स, लेकिन वह अपनी प्रजा को भी इस काम के लिए मजबूर करते थे।
He forced them to leave their own business. He means वह force means मजबूर करते थे, them means उन्हें, to leave कि छोड़ दें, their own business अपने स्वयं के काम को, वह उन्हें अपने कामों को छोड़ने पर मजबूर करते थे, and join him regularly on his hunting, और उनसे उनके साथ, हंटिंग मीन्स होता है शिकार पर, रेगुलरली मतलब रोजाना, स्प्री मतलब आनंद के साथ, ईच मतलब प्रत्येक को, तो ऐसे कहेंगे कि वह प्रत्येक लोगों को रोजाना शिकार पर अपने साथ जुड़ना चाहते थे, मतलब ले जाना चाहते थे, एंड एवरी मॉर्निंग और प्रत्येक सुबह। आफ्टर ए वाइल इसके बाद, द विलेजर्स गॉट सिक मतलब आफ्टर ए वाइल कुछ दिनों बाद, द विलेजर्स मतलब गांव वाले, गॉट मिस हो गए, सिक मिस बीमार, ऑफ दिस रेगुलर रूटीन रोजाना के दिनचर्या से, रूटीन मतलब होती है दिनचर्या, तो द विलेजर्स गॉट सिक ऑफ दिस रेगुलर रूटीन, गांव वाले इस रोज आने की दिनचर्या से बीमार हो गए, एज दे हैड मच बेटर थिंग टू डू, एज जैसा कि दे हैड मच वह कर सकते थे, बेटर मतलब अच्छी, थिंग्स मतलब चीज़ें, टू डू इससे, वह इससे अच्छी चीज़ें कर सकते थे, विद देयर लीव्स अपने जीवन में, बिसाइड्स इसके अलावा, देयर वर्क हैड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैड आल्सो बिगेन टू सफ़र, देयर वर्क उनका काम, एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और उनकी जीविका, हैड आल्सो बिगेन टू सफ़र, आल्सो मतलब भी, बिगेन मतलब शुरू हो गई, टू सफ़र मतलब होती है सफ़र करना, मतलब तो सफ़र मीन्स होता है बुरा प्रभाव पड़ना, ठीक है, बुराई बुरा होता है, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर्स, तो सफ़र करना मतलब दुखी में होना, दुख होना, ठीक है, तो देयर वर्क एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हैड आल्सो बिगेन टू सफ़र, मतलब उनके कामों पर और उनकी जीविका पर भी बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था, दे रियलाइज उन्हें महसूस हुआ, दैट कि दे मस्ट फाइंड कि उन्हें खोजना चाहिए, ए सोल्यूशन एक हल, दे रियलाइज दैट दे मस्ट फाइंड ए सोल्यूशन, उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक हल सोचना चाहिए या खोजना चाहिए, टुगेदर साथ साथ, दे केम अप विद ए प्लान, वह एक साथ एक योजना के साथ आए, they decided to grow plants, sow crops and dig water in the royal park they itself, they decided उन्होंने निश्चय किया, to grow उगाने का, plants पौधों को, sow crops, sow मीन्स होता है बोना, crops मतलब फसलें, फसलों को बोने का, एंड डिग वाटर होल्स, एंड डिग मीन्स होता है खोदना, वाटर होल्स मतलब पानी के गड्ढों को, इन द रॉयल पार्क शाही बगीचे में, इट्सेल्फ मतलब खुद से ही, दे डिसाइडेड टू ग्रो प्लांट्स उन्होंने पौधों को उगाने का निश्चय किया, सो क्रॉप्स फसलों को बोने का, एंड डिग वाटर होल्स और पानी के गड्ढों को खोदने का, इन द रॉयल पार्क इट्सेल्फ शाही बगीचे में खुद से, मतलब शाही बगीचे में खुद से ही पौधों को उगाने का, फसलों को बोने का और पानी के गड्ढों को खोदने का निश्चय किया। Then they would drive a number of deer into the confine of the park and shut the gates. Then तब they मीन्स वे could drive उन्होंने शुरू किया, a number of deer अधिक संख्या में हिरन को, into the confine of park बगीचे में डालना, and shut the gate और दरवाज़ों को बंद करना, तब उन्होंने अधिक संख्या में हिरन को सीमा से पकड़ा और उन्हें शाही बगीचे में बंद करके दरवाजे को डालकर दरवाजे को बंद कर दिया, इन दिस वे इस तरीके से, द किंग कुड हंट एट लीजर, इस तरीके से किंग मिस राजा कुड हंट शिकार कर सकेंगे, एट लेजर, लेजर मिस आपका होता, तो लेजर मिस आपका होता है फुर्सत से, तो इस तरीके से राजा फुर्सत में शिकार कर सकेंगे, एंड वुड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम हिज ओबीडेंट सब्जेक्ट्स, एंड वुड नॉट और इस तरीके से, एंड वुड नॉट और नहीं होगी, रिक्वायर आवश्यकता, एनी फर्दर हेल्प किसी भी सहायता की, फ्रॉम हिज
ओबीडेंट सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मीन्स होती है प्रजा की, ओबीडेंट मतलब होती है आज्ञाकारी। इस तरीके से उन्हें अपने आज्ञाकारी प्रजा की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। So at first they went about preparing the royal park for the deer. Then they went into the forest. इसलिए एट फर्स्ट पहले दे वेंट वह गए, अबाउट प्रिपेयरिंग तैयार करने के लिए, द रॉयल पार्क शाही बगीचे को, फॉर द डियर मतलब हिरन के लिए। इसलिए वह पहले शाही बगीचे को हिरन के लिए तैयार करने के लिए गए। देन तब दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, तब वह जंगल गए, आर्म विद वेपन हथियारों के साथ, एंड स्टिक और छड़ियों के साथ, इन ऑर्डर टू ड्राइव डियर इनटू द रॉयल पार्क। इन ऑर्डर इस आदेश से, टू ड्राइव द डियर की वह हिरन को ड्राइव मतलब धकेलते हुए लाएंगे इनटू द रॉयल पार्क शाही बगीचे में। दे सराउंडेड द टेरिटरीज ऑफ बोथ द हट्स, दे मिस उन्होंने सराउंडेड मिस घेर लिया, द टेरिटरीज क्षेत्रों को, ऑफ बोथ दोनों, हट्स मतलब समूह के, दोनों समूह के, उन्होंने चारों तरफ से दोनों समूह के क्षेत्रों को घेर लिया। दोज ऑफ किंग बनियान डियर एज वेल एज किंग ब्रांच डियर, दोज वे ऑफ द किंग राजा बरगद हिरन एज वेल एज, और राजा शाखा हिरन, एंड ड्रॉप देम इनटू द रॉयल पार्क, उन्हें भी शाही बगीचे में ढकेल दिया गया। with shouts of glee as they beat their stick on the ground, with मतलब साथ में, shouts मतलब चिल्लाकर, of glee मतलब खुशी के साथ चिल्लाकर, जैसा कि दे बीट वह पीटते, देयर स्टिक्स अपने छड़ियों को, ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, वह खुशी के साथ अपने छड़ियों को ज़मीन पर पीटते, एंड वेव्ड देम और उन्हें लहराते, वेव्ड करना मतलब लहराना, एंड वेव देम इन द एयर और उसे हवा में लहराते। एज सुन एज जल्द ही, बोथ द हर्ट्स दोनों, एज सुन एज जल्द ही, बोथ द हर्ट्स दोनों समूह वर इन अंदर थे, द गेट्स वर शट दरवाजे को बंद कर दिया गया था, एंड द डियर इन ट्रैप और हिरन कैद हो गए थे। देन दे वेंट टू देयर किंग, तब वह अपने राजा के पास गए, एंड टोल्ड हिम और उन्हें बताया, दैट एज दे कुड नॉट कंपनी कि उन्हें अब उनकी साथ की आवश्यकता नहीं होगी, एनी मोर ऑन हिज हंट अब इससे अधिक उनके शिकार पर, मतलब देन वेंट टू देयर किंग, तब वे अपने राजा के पास गए, एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, दैट की एज दे वुड नॉट कंपनी कि उन्हें साथ की ज़रूरत नहीं होगी, हिम उनकी, एनी मोर इससे अधिक, ऑन हिज हंट उनके शिकार पर कि उनके शिकार पर अब उनके प्रजा के लोगों की आवश्यकता नहीं होगी। दे हैड सक्सेसफुली मैनेज टू इंट्रैप ए नंबर ऑफ डियर इन द रॉयल पार्क, दे हैड सक्सेसफुली मैनेज उन्होंने सफलतापूर्वक संभाल लिया है, टू इंट्रैप और फंसा लिया है, ए नंबर ऑफ डियर अधिक संख्या में हिरन को, इन द रॉयल पार्क शाही बगीचे में, फॉर हिज रॉयल प्लीजर उनके शाही खुशी के लिए। द किंग वाज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड, द किंग मिस राजा वाज मिस था, एब्सोल्युटली मतलब निश्चित रूप से, थ्रिल मतलब होता है रोमांचित हो जाना, राजा निश्चित रूप से रोमांचित हो गया था। व्हेन ही सेट आइज ऑन द ग्रेट नंबर ऑफ डियर इन द रॉयल पार्क, व्हेन ही सेट आइज जब उसने अपनी निगाहों को या उसने अपनी आँखों को, ऑन द ग्रेट नंबर अधिक संख्या में हिरन पर डाली, इन द रॉयल पार्क शाही बगीचे में, जब उसने शाही बगीचे में अधिक संख्या में हिरन को देखा। वाइल गेजिंग एट देम उन्हें देखने के बाद, हिज आइज फेल ऑन द टू ब्यूटीफुल गोल्डन डियर, हिज आइज उसकी आँखें, फेल ऑन पड़ी, द टू ब्यूटीफुल दो सुंदर, गोल्डन सुनहरे हिरन, डियर मीन्स हिरन पर,
वाइल गेजिंग एट देम, उन्हें देखने के बाद उसकी आंखें दो सुंदर सुनहरे हिरन पर पड़ी। एंड ही एट वंस डिसाइडेड टू स्पेयर देयर लीव्स, एंड ही एट वंस, और उसने तभी डिसाइडेड निश्चय किया, टू स्पेयर कि वह बख्श देगा या छोड़ देगा, देयर लीव्स उनके जीवन को। एंड ही सेट वंस डिसाइडेड टू स्पेयर देयर लीव्स, और उसने निश्चय किया, और उसने उसी समय निश्चय किया कि वह उनके जीवन को बख्श देगा। ही इशूड एन ऑर्डर, यह एक फरमान जारी हुआ, यह एक आदेश जारी हुआ, दैट दे वर नॉट टू बी हंट एट एनी कॉस्ट, कि दे वर नॉट, कि कोई भी नहीं, टू बी हंट शिकार करेगा, एट एनी कॉस्ट इन दोनों का, कि इन दोनों का शिकार कोई भी नहीं करेगा। ईच डे प्रत्येक दिन, आफ्टर दैट इसके बाद, इधर द किंग आर वन ऑफ हिज हंटर्स, राजा चाहे राजा अथवा उसका एक शिकारी, वुड शूट एरोज एट द डियर, डियर मीन्स हिरन पर, एरोज शूट एरो मतलब तीर चलाता, मतलब इधर द किंग आर वन ऑफ हिज हंटर, राजा या उसका अथवा एक उसका शिकारी हिरन पर तीरबाजी करता और उन्हें मारता। शूट करना मतलब मारना। द डियर वुड स्कैटर वाइडली इन एवरी डायरेक्शन। द डियर मीन्स हिरन, कुड स्कैटर मतलब होता है आपका, तो आपका स्कैटर वाइडली मीन्स होता है जान बचाकर। द डियर वुड स्कैटर वाइडली, और हिरन जान बचाकर, इन एवरी डायरेक्शन प्रत्येक दिशा में, एंड गेट प्रत्येक दिशा में दौड़ते, एंड गेट हर्ट इन द इंसुइंग स्टैम्पेड, एंड गेट और हो जाते, हर्ट मतलब घायल या दुखी हो जाते यहाँ पे, लेकिन घायल पढ़ेंगे, एंड हर्ट और घायल हो जाते, इन द इंसुइंग करना मतलब होता है आगमित, ठीक है, आगमी, एंड आगे होता है आगमी होना, ठीक है। हर्ट और दुखी मतलब उन्हें चोट लग जाती, इन द इंसुइंग आगमी, स्टेम्ड मतलब करना होता है आपका भागना, ठीक है, भागा दौड़ी में उन्हें चोट आ जाती थी। तो जो हिरन थे, चलिए देखिए यहाँ से फिर से, द डियर वुड स्कैटर वाइडली इन एवरी डायरेक्शन, हिरन प्रत्येक दिशा में जान बचाकर भागते, एंड गेट हर्ट और घायल हो जाते, इन द इंसुइंग आगमित होकर, स्टेम मतलब भगदड़ में, भगदड़ में आगमी होकर भगदड़ में आगमी होकर घायल हो जाते। सो वन डे, इसलिए एक दिन, किंग बनियान डियर, राजा बरगद हिरन, एंड किंग ब्रांच डियर, और राजा शाखा हिरन, पुट देयर हेड्स टुगेदर, उन्होंने अपनी बातों को एक साथ रखा, एंड केम अप विथ ए प्लान, और एक योजना पर आए। दे रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, दैट ईच डे की प्रत्येक दिन, देयर हर्ट्स वर गेटिंग वुंडेड, कि उनका समूह वर गेटिंग वुंडेड घायल हो जाता था, इन ग्रेट नंबर अधिक संख्या में, एंड सम वर गेटिंग किल्ड और कुछ मारे जाते थे। इवन दाऊ, यद्यप इसके अलावा डेथ मृत्यु वाज थी इनविटेबल मतलब होता है आपका निश्चित हो जाना, ठीक है, निश्चित होना या अनिवार्य होना, ठीक है। जबकि मृत्यु निश्चित थी या जबकि मृत्यु अनिवार्य थी। दे कुड एटलीस्ट, दे मीन्स वे कुड सकेंगे, एटलीस्ट मतलब थोड़ा सा, ट्राई मतलब प्रयास कर सकेंगे, टू सेव बचाने का। दे कुड एटलीस्ट ट्राई टू सेव, जब वे थोड़ा सा प्रयास करें, टू सेव बचाने का, द लिविंग वंस जीवित हिरन को, फ्रॉम अननेसेसरी अनावश्यक पेन दुखों से, एंड टॉर्चर और मुसीबतों से, मतलब इससे वह अनावश्यक दुख और परेशानियों से हिरन को, जीवित हिरनों को थोड़ा सा बचाने का प्रयास कर सकते थे। मतलब दे कुड एटलीस्ट ट्राई टू सेव, वह थोड़ा सा प्रयास कर सकते थे, द लिव वन जीवित हिरन को बचाने का, फ्रॉम अननेसेसरी पेन एंड टॉर्चर अनावश्यक दुख और दर्द से, मतलब अनावश्यक दुख और दर्द से,
वह जीवित हिरन को बचाने का थोड़ा सा प्रयास कर सकते थे। So they decided to send a deer to the royal palace to be slaughtered and served to the king each and every day. So इसलिए they decided, उन्होंने निश्चय किया, to send a deer कि वह एक हिरन को भेजेंगे to the royal palace, शाही महल में, to be slaughtered वध करने के लिए, हत्या के लिए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वह प्रत्येक दिन एक हिरन को शाही दरबार में हत्या के लिए भेजेंगे। एंड सर्व टू द किंग, और राजा का भोजन बनेगा, ईच प्रत्येक, एंड एवरी डे, प्रत्येक दिन, और वह प्रत्येक दिन राजा का भोजन बनेगा, या वह प्रत्येक दिन प्रत्येक राजाओं का भोजन बनेगा। द पैक्ट वाज टू अल्टरनेट बिटवीन टू हर्ड्स। द पैक्ट मीन्स आपकी होता है समझौता। ये समझौता वाज मीन्स था, टू अल्टरनेट लगातार, बिटवीन मतलब बीच में, द टू हर्ड्स दो समूहों के। ये समझौता दो समूहों के बीच लगातार चलता रहा। दिस सिस्टम कंटिन्यूड फॉर सम टाइम। अरे सॉरी, चलिए देखिए यहाँ से। द पैक्ट वाज टू अल्टरनेट बिटवीन द टू हर्ड्स। द पैक्ट मीन्स समझौता, वाज मीन्स था, टू अल्टरनेट मतलब बारी बारी करके, बिटवीन द टू हर्ड्स दो समूहों के बीच। यह समझौता दो समूहों के बीच बारी बारी करके था। इन दिस वे, इस तरीके से, एटलीस्ट थोड़ा सा है, द रेस्ट ऑफ द डियर, हिरन को आराम मिला, कुड बी स्पेयर्ड अननेसेसरी टॉर्चर। कुड बी स्पेयर, अननेसेसरी मतलब होता है अनावश्यक, टॉर्चर मतलब दुखों से, मतलब इस प्रकार अनावश्यक दुखों से हिरन को थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार, इन दिस वे, इस तरीके से, या इस प्रकार, एट लीस्ट थोड़ा सा, द रेस्ट आराम मिलेगा, अब द डियर हिरन को, कुड बी स्पेयर्ड मतलब होता है आपका हो जाएगा बख्शे जाएंगे, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक, और टॉर्चर मतलब दुखों से, मतलब इस प्रकार अनावश्यक दुखों से हिरन को थोड़ा आराम मिलेगा और वह बख्श दिए जाएंगे। दिस सिस्टम, यह नियम, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, कुछ समय तक चलता रहा। ईच डे, प्रत्येक दिन, ए डियर वाज सेंड, एक हिरन को भेजा जाता था, टू द रॉयल पैलेस, शाही दरबार में, टू बी स्लेक्टर, हत्या के लिए, बाय द रॉयल कुक, शाही बावर्ची के पास। मतलब ईच डे ए डियर वाज सेंट टू द रॉयल पैलेस, प्रत्येक दिन एक हिरन को शाही दरबार में भेजा जाता था, टू बी स्लेक्टेड बाय द रॉयल कुक, शाही बावर्ची के पास हत्या के लिए, या शाही बावर्ची के पास काटने के लिए। एंड द रेस्ट ऑफ द डियर, एंड द रेस्ट मीन्स आराम, ऑफ द डियर, हिरन का, वर अलाउड टू लीव, जो जीवित थे, इन पीस, शांति में, अंटिल, तब तक, इट वाज देयर टर्न, जब तक कि उनकी बारी नहीं आती। एंड द रेस्ट ऑफ द डियर वर अलाउड टू लीव इन पीस, और और जो जितने, एंड द रेस्ट और आराम था, ऑफ द डियर वर मतलब, और सारे हिरनों को आराम था कि वह शांति से जी सकते थे, अंटिल, तब तक, इट वाज देयर टर्न, जब तक कि उनकी बारी नहीं आती, मतलब जब तक कि उनकी बारी नहीं आती वह आराम और शांति से अपना जीवन जी सकते थे। तो आगे देखते हैं अब यहाँ से। One day it was the turn of a young female deer with a newborn baby. One day मतलब एक दिन, it means यह, was means था, turn मतलब बारी, of means के, a means एक, young means युवा, female means औरत की, deer मतलब हिरन। मतलब one day एक दिन, it was the turn of a young female deer, यह एक दिन एक युवा औरत हिरन की बारी थी, विथ ए न्यू बर्न बेबी, जिसके साथ एक नवजात शिशु था। शी बिलोंग टू द हर्ड ऑफ किंग ब्रांच डियर, शी बिलोंग वह थी, टू द हर्ड मतलब समूह की, ऑफ किंग ब्रांच डियर मतलब वह राजा शाखा डियर के समूह से थी। शी वाज वरीड, वह चिंतित थी, दैट आफ्टर की बाद में, शी वाज किल्ड
उसके मरने के बाद देयर वुड बी नो वन, कोई भी वहाँ नहीं होगा, टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड, उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए। फिर से देखिए, शी वाज वरीड, वह चिंतित थी, दैट की आफ्टर शी वाज किल्ड, कि उसके मरने के बाद देयर वुड बी नो वन टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड, उसके मरने के बाद उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। हु वाज स्टिल टू यंग, हु मिस जो, वाज मिस था, स्टिल मतलब अभी भी, टू यंग मतलब बहुत छोटा था, टू लुक आफ्टर इट्स और अपनी देखभाल नहीं कर सकता, मतलब आफ्टर इट्स सेल्फ मतलब होता है खुद से देखभाल नहीं कर सकता था। हु वाज स्टिल टू यंग टू लुक आफ्टर इट्स सेल्फ, और वह अभी भी इतना छोटा था कि वह अपनी देखभाल नहीं कर सकता था, खुद से अपनी देखभाल नहीं कर सकता था। सो इसलिए शी अप्रोच्ड हर किंग विद द अपील दैट ही सेंड अनदर डियर इंस्टीड ऑफ हर दैट डे। सो इसलिए ही अप्रोच्ड, वह गई, हर किंग अपने राजा के पास, विद द पील, पील मिस होता है अपील करना या दलील करना या विनती करना। सो शी अप्रोच्ड हर किंग, इसलिए वह अपने राजा के पास गई, विद द पील विनती के करने के लिए, दैट ही सेंड अनदर की ही दैट की ही मिस वह सेंड मिस भेज दें, अनदर मतलब दूसरे, डियर मतलब हिरन को, कि वह दूसरे हिरन को भेज दें, इंस्टीड ऑफ हर उसके बजाय, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, ऑफ हर मतलब उसके, उसके बजाय वह दूसरे हिरन को भेज दें, दैट डे उस दिन। एंड शी वुड विलिंगली गो टू द स्लेक्टर आफ्टर हर फवान वाज ओल्ड इनफ, एंड शी वुड विलिंगली और वह निश्चित रूप से, वह साधारण रूप से मतलब वह चली तैयार रहेगी, एंड शी वुड विलिंगली और वह तैयार रहेगी, गो जाने के लिए, टू द स्लेक्टर हत्या के लिए, आफ्टर हर फवान, आफ्टर मतलब बाद में, हर फवान जब उसका बच्चा वाज ओल्ड इनफ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, टू लुक आफ्टर हिमसेल्फ और खुद से अपनी देखभाल कर सकेगा। मतलब उसने कहा, सो शी अप्रोच हर किंग विद द अपील, इसलिए वह विनती के साथ अपने राजा के पास गई, दैट ही सेंड अनदर डियर इंस्टीड ऑफ हर, और उसने कहा कि सी दैट की ही सेंड वह भेज दें, ही सेंड अनदर डियर की वह दूसरे हिरन को भेज दें, इंस्टीड ऑफ हर उसके बजाय, दैट डे उस दिन, एंड शी वुड विलिंगली गो टू द स्लेक्टर और वह तैयार रहेगी हत्या के लिए जाने के लिए, आफ्टर हर फवान वाज ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर हिम, जब उसका बच्चा अपने स्वयं की देखभाल करने के लिए बड़ा हो जाएगा। मतलब उसने कहा कि अब जब मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपनी देखभाल खुद से कर लेगा, तो मैं जाने के लिए तैयार रहूँगी। इससे पहले अभी मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो मेरे जगह पर किसी दूसरे हिरन को भेज दीजिए। तो अब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो में होता क्या है, कि राजा मान जाते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या होता है, उसे भेजा जाएगा कि किसी दूसरे हिरन को भेजा जाएगा। तो इस सस्पेंस के साथ ये वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसे अच्छे से रीड करें।